Dear student, welcome back to Dr. Shrikant Pharmacy channel. Please like, share, subscribe and hit the bell icon for the latest pharmacy video. So today I came with the one more topic, that is capsules. So capsules are the another type of the solid dosage form like the tablet. These capsules also very much popular in a market. In this class we are discussing what are the tablets and what are the importance of that and what are the advantages as well as the disadvantages. These capsules are solid unit dosage form. I told very clearly, solid unit dosage form, in which one or more active medicament or medicaments are enclosed within a gelatin shell. So these gelatin shells are available as two types. One we called as a hard gelatin capsule, another one we called as a soft gelatin capsule. So these hard gelatin capsules are mainly used for filling of a solid material, whereas a soft gelatin capsule we are using for filling of a liquid or the semi-solid. So most commonly the liquids like oils are commonly used. Okay, and these capsules are mainly divided into two parts. They are divided into two parts. One we called as a body, another one we called as a cap. So the body is used for filling the materials that is solid in nature by using a manual or equipment or multi-stationary equipments are available to fill the active medicament as well as the diluents or the excipients which are containing the formula. And this body usually little longest when compared with the cap, and this cap is very small and this cap will be placed on this. For example, these shells are made up of usually a gelatin as a material, and this is the body which contains the active medicament as well as the excipient, and this part is called as a cap part and this part is called as a body part. So this capsule containing the thing that this is a body, the material to be filled are filled into this and the cap will be placed on this. So total together we call as a capsule. So these capsule are popularly like a tablet day to day. The next important or next accepted the type of dosage form when comparing with the tablet means the second one is the capsules, and these capsules also be administered for as a rectum as well as the vagina. So like the suppositories, so these are also the best route of administration through the capsule dosage form. And for oral administration usually the capsules are placed on the tongue and swallowed with the drink of water. ओके, सो ये कैप्सूल जो भी रहता है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है. जैसे टैबलेट के बारे में हम लोग बोले थे ऐसे ही ये कैप्सूल भी बहुत ही फेमस है. ये कैप्सूल कैसा रहता बोले तो सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म रहता है और उसमें क्या रहता है, एक रहता है, दो रहते हैं, एक से ज़्यादा भी मेडिकमेंट जो रहता है ना उसमें एनक्लोज करते हैं, मतलब वो जिलेटिन कैप्सूल शेल रहता है ना उसमें फिल कर देते हैं. ये जो जिलेटिन कैप्सूल शेल जो आता है ना मार्केट में दो तरह का रहता है, एक हार्ड जिलेटिन कैप्सूल बोलते हैं, एक सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल बोलते हैं. हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में क्या है, सॉलिड मटेरियल हम लोग फिल करते हैं. सॉफ्ट जिलेटिन में क्या है, लिक्विड आर द सेमी सॉलिड लाइक ए मटेरियल विल बी फिल्ड. जो भी कैप्सूल जो आता है ना मार्केट में वो मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स रहता है. जैसे हार्ड जिलेटिन कैप्सूल रहता है ना उसको दो पार्ट रहता है, बॉडी और कैप्सूल कैप बोल के अलग रहता है. हार्ड जिलेटिन कैप्सूल जो लॉन्गेस्ट रहता है ना उसको बोलते हैं बॉडी, उसमें जो मटेरियल टू बी फिल्ड रहता है ना उसमें फिल कर देते हैं बाय यूजिंग मैनुअल और इक्विपमेंट्स. जो भी स्मॉल पार्ट रहता है ना कैप उसको ऊपर उसको रख देते हैं. सो खास कर को जो जिलेटिन शेल्स बनाते हैं ना वो मटेरियल यूज़ करते हैं जिलेटिन एज एन component. And this upper part is called as a cap and lower part is called as a body. कैप में जैसे समझ लीजिए ये जो बॉडी है इसके अंदर हम लोग ग्रैनुल्स और पाउडर्स जो भी हम फार्मूला बनाए रहते हैं उसमें डाल देना, इसके ऊपर ऐसे कैप रख दिए तो ये जो कैप्सूल रहता है ना ऐसा निगल सकते हैं. ओके, सो पॉपुलर, बहुत ही पॉपुलर है ये कैप्सूल. जैसे टैबलेट आपको मालूम है ऐसे ही कैप्सूल भी सेकेंड आ जाता है, जैसे टैबलेट के बाद नेक्स्ट कैप्सूल ही आ जाता है. दीज कैप्सूल्स इसके ओरल एडमिनिस्ट्रेशन अलावा आप ये जो कैप्सूल है ना वजाइना रेक्टल में रख सकते हैं. ओके, सो फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या करना, कैप्सूल लेना है,
टंग के ऊपर रख देना, पानी लेके हम लोग निगल देना, दैट इज स्वैलो करना। तो बहुत ही आसान है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। लेट मी डिस्कस दी व्हाट आर द एडवांटेजेस। दे आर टेस्टलेस, odorless and easily administration. Capsules are very attractive and very economic next to the tablet dosage form, and easy to handle, easy to कैरी। लाइक टैबलेट का जो एडवांटेजेस है यहाँ पे भी पूरी तरह उसी तरह रहता है एडवांटेजेस। सम आर द डिसएडवांटेजेस। हाइग्रोस्कोपिक कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन रहे तो इट्स नॉट सुटेबल, बिकॉज हाइग्रोस्कोपी में क्या हो जाता है, जो मॉइस्चर रहता है ना कैप्सूल शेल में वो ऑब्जर्व होकर डिग्रेडेशन हो जाता है, इसलिए हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल डेलिक्विशेंट सब्सटेंसेस को इसमें फिल नहीं करना। और कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन रहे तो वो गैस्ट्रिक इरिटेशन होने का चांसेस रहता है, इसलिए बहुत कम यूज़ करते हैं। और खास को ये क्या है, छोटे बच्चों के लिए बहुत ही नॉट सेलेक्टेड, बिकॉज कैप्सूल आर लिटिल बिट the odor will be there, so that will be leads to the not suitable। and more importantly कैप्सूल जो रहता है ना ब्रेक नहीं कर सकते, टैबलेट रहे तो आप आराम से ब्रेक कर सकते हैं। सो कैप्सूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे हम लोग सेमी सॉलिड रहने दो या सॉलिड रहने दो, बेस्ड ऑन दैट वी आर यूजिंग दी सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल और हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, बोथ आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द फार्मास्यूटिकल फील्ड। मैं समझता हूँ एक क्लास से बहुत ही सरल से कैप्सूल मतलब क्या हो जाता है, उसमें कैप्सूल में किस तरह से टाइप्स रहता है और क्या इंपॉर्टेंट खास करके हम लोग जानकारी लेना, उसके बाद कैसे ये जो एडवांटेजेस है और उसके बारे में और डिसएडवांटेजेस क्या है बोलने के कैप्सूल के बारे में बहुत ही सरल से आपको समझाया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।